Good afternoon, everyone. Today we will see whatever we have studied till yet on board, so that एक रिवीजन हो जाए आप लोगों का पूरा जितना भी अभी तक हम लोग ने देखा है और आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकें. So first of all, without I will start the session, and today we will see about static variables, local variables, instance variables, examples के साथ देखेंगे और ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं. ठीक, ये सारी चीज़ें जो हम देख चुके हैं इसको आज फिर से देखते हैं. चलिए, एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन ऑल्सो. सो वी विल स्टार्ट विद द क्लास डायग्राम. I hope it is visible to all. See, this is your class which has three parts: state and behavior and name of the class. Suppose name of your class is A. Fine. State means how many variables are there, which tells whose values tells exactly the state of your class. And method M1, M2, all these things are there. So this is a class diagram. Remember this, we have two methods M1 and M2 here. M1 and M2 here, and two variables X and Y. Fine. Now we are going to make our class in programming, and we are going to use it through object. So we will learn how to create an object of this particular class and execute our methods or something like that. Fine. So let's start with this. मैं इसको मिटा दे रहा हूँ. This is how we prepare our class. We write class, then class name. Fine. Then comes your variables int x, comma, y. Then comes your methods void m1. It has no parameters. It is doing nothing but printing m1 only. System.out.println m1. Fine. And we have another method m2. It is also printing method 2. System m2. Fine. And this is class खत्म. यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने बनाया, जैसे हमने डायग्राम बनाया था बिल्कुल वैसा ही हमने बनाया है. दो मेथड लिए हैं जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है. ठीक, m1 और m2 नाम के हैं दोनों मेथड, और दोनों सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं अपना नाम ही सिंपल m1 और ये m2. फाइन. एंड देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y. ठीक, एंड क्लास a सपोज. ठीक है, तो अब दिस इज योर क्लास. नाउ वी आर गोइंग टू मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. जस्ट रिमेंबर बिकॉज आई हैव टू रब दिस. फाइन. So I am creating an object of this particular class A. ठीक, let me admit few people. Fine. Okay, fine. तो इसको याद रखिएगा. ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट लेते रहिए बीच बीच में ताकि आप समझ सके. तो मैं हटा दे रहा हूँ, बस इतना ध्यान में रखिए. दो मेथड्स से, टू मेथड्स आर देयर m1 m2 नाम के, जो सिर्फ m1 और m2 प्रिंट करा रहे हैं, एंड टू वेरिएबल्स आर देयर x और y. बस ये चीज है. Now I am going to use this class, but basically, so this is class test main method. Now we have to create our main method. Public static void main string args. ये start होता है. Now we are creating two objects of our class A. This is how we create this. It is very important, this line. Class obj1 is equal to new A constructor. Now see this line, see this statement. Here obj1 is your reference variable. It is reference
variable. We will discuss about it now. And this is what it is, your constructor, default constructor. Fine. This is your class. So your reference variable obj1 which refers to your object 1, आपका जो भी object आपने अभी create किया है. This is how you declare a reference variable. Now you assign it. आपने इसमें क्या assign किया? New constructor A means you are assigning the space physically. So new is the keyword to create an object. This is how we create an object. And here this is default constructor. Its use is to initialize the values ऑफ द इंस्टांस वेरिएबल. तो इंस्टांस वेरिएबल में याद रखिए वो अपने क्लास ए में जो एक्स और वाई बनाया था उसकी वैल्यूज इनिशियलाइज कर देगा. इनिशियलाइज किस चीज से करेगा? नल से करेगा, क्योंकि अभी कोई वैल्यू हम दे नहीं रहे उसमें. ठीक है, तो एक्स में भी 0 चला जाएगा और वाई में भी 0 चला जाएगा. इसका काम होता है ये. ठीक, कंस्ट्रक्टर. इट गिव्स स्पेस एज वेल एज द वो स्पेस तो न्यू से मिल गया और वैल्यूज इनिशियलाइज कैसे हुई? ए से. इस कंस्ट्रक्टर की बात हम बाद में करेंगे जब मेथड्स पढ़ लेंगे उसके बाद. तो अभी फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखिए. दिस इज हाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ आवर क्लास. इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर रुक करके सोचिए इसको कि क्लास टेस्ट में हमने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया? अपने ए का, मेन मेथड के अंदर. फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक, इसी को तो obj1 is your reference variable whereas a is your default constructor. Now is there anyone who is unable to? Okay, fine. ठीक, I am creating another object. दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं इसी क्लास का. a obj2 is equal to new a. फाइन, और बस अभी यहाँ पर वेट करते हैं. हमने क्या किया? हमने बनाया दो ऑब्जेक्ट्स. इसको डायग्राम से समझते हैं हम कि हुआ क्या. ठीक, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ. व्हाट हैपेंस, अभी प्रोग्रामिंग नहीं है ये, इसको डायग्राम से समझिए हुआ क्या. जब आपने obj1 और obj2 बनाया तो obj1 is here, obj2 is here. ठीक, it is called reference variable. These two are called reference variable and another memory area which is heap. heap area में object create होते हैं. Two objects are created. ठीक, अब उन ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या होगा? एक x वैल्यू होगी और एक y होगी. एक x वैल्यू होगी और एक y वैल्यू होगी. ठीक, याद रखिए, ध्यान दीजिएगा. जब क्लास ए हमने बनाया था तो उसमें x y लिखा हुआ था. we have declared x and y. fine, so this object 1 is referring to this location, this object 2 is referring this location. Object 1 has all the properties of that class as well as object 2 has all the properties of that class also. So object 2 has its own x and y now, and object 1 has its own xy which is the idea of our class. ठीक, तो ये देख रहे हैं जो क्लास में था जब ऑब्जेक्ट बना तो फिजिकली एग्जिस्ट किया. दैट इज व्हाई वी से ऑब्जेक्ट्स आर दोज व्हिच आर physically existing but not the class. Fine, so after making our object, it is physically existing. So now we can use our class members and methods also. So object 1 can use m1 m2 also. इसमें somewhere m1 m2 and m1 m2. फाइन, अब इसको मैं एग्जांपल बता, जैसे BCA स्टूडेंट क्लास. फाइन, तो BCA स्टूडेंट क्लास में एक हमने क्लास बनाई. नाउ हर एक ऑब्जेक्ट के पास उस BCA स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, जो भी उसके मेथड्स होंगे और जो जैसे कि आप लोग हैं. ठीक, तो आप जितने भी हैं उनमें क्या हो जाएगा? BCA स्टूडेंट्स की जितनी प्रॉपर्टीज होगी वो आ जाएगी, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा. फाइन, आई होप इट इज क्लियर. सो अब देखिए, मैं बताना क्या चाह रहा था कि ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 इज जस्ट अ नेम. इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, इज नॉट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज व्हिच इज फिजिकली एग्जिस्टिंग इन द मेमोरी. सो ये टेक्निकल, दिस इज द टेक्निकल टर्म व्हिच यू हैव टू. जनरली लोग मिस्टेक कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, या फिर ये यहाँ पर जो हमने लिखा है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट बना दिए हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया. इसका टाइप इसकी क्लास है. टाइप एंड नेम, इट इज वेरिएबल.
इट इज रेफरिंग टू सम ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट जो आपका फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको हम एक्सेस किससे करेंगे? obj1 से करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कर पाएंगे। ठीक, अब वो कैसे करेंगे? अब मैं हटा देता हूं इसको, डायग्राम को, और समझिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। So now we can use, after making object1, now we can use, we are simply printing values of xy through object1 or object2। ठीक, so अब हम क्या कर सकते हैं, अब बन चुका है ये, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln obj1 डॉट x। ठीक, and now we are calling method obj2 डॉट m2। ये हो गया आपका पूरा क्लास, और यहां पर हो गई आपकी खत्म। ठीक, अब देखिए हमने x को प्रिंट कराया, यहां पे 0 आएगा आउटपुट, और m2 में m2 लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पे। ठीक, तो दिस इज हाउ वी एक्सेस आवर क्लास मेंबर्स एंड मेथड्स थ्रू ऑब्जेक्ट आफ्टर क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इसका आउटपुट m2 का आप ध्यान में रखिए, m2 में हमने क्या बनाया था, m2 सिर्फ प्रिंट कर रहा था। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सबको प्रिंट करा देना है, मतलब सबको ही एक्सेस करना है। देखो एक लोग प्रखर भी आ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln obj1 डॉट y। अब एक्स वाई ऑफ obj1 प्रिंट हो गया। अब obj1 डॉट m1 एंड obj1 डॉट m2। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट 1 के सारे प्रिंट करा दिए, वेरिएबल्स एक्सेस कर लिया। अब हमें वैल्यू देनी होगी तो कैसे देंगे? obj1 डॉट x इज इक्वल टू 10। इस तरह से हम वैल्यू भी दे सकते हैं, और भी मेथड्स हैं वैल्यूज देने के लिए, लेकिन वो हम पढ़ेंगे बाद में, जब स्कैनर क्लास और ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर अभी फिलहाल के लिए दिस इज हाउ वी एक्सेस द मेंबर्स ऑफ आवर क्लास। फाइन, this is very basic thing and very starting thing which you have to understand very carefully. So obj1 and 2 are reference variables which are those are referring to some space memory area that is called object. Fine, I hope it is clear to you all. Admit to kiya tha na. Take, now I am moving next. So what we have seen is how to create a class, how to create an object of that class, and difference between reference variable and an object। तो ये तीनों चीजें हमने अभी देखी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम वी विल मूव ऑन टू जो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर, which is local variable and instance variable and static variables. Fine, so I'm moving to that thing. Local and instance, third one is static. We will discuss each one by one. Fine, so local which is used inside a method body। ठीक, या lives, not use, lives रहता है मेथड बॉडी के अंदर। जो भी वेरिएबल होगा दैट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। इट इज, और इसका एक्सेस या स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज ओनली विद इन द क्लास। ये 2 पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स। ठीक, जो कि आप सी प्रोग्रामिंग में भी देख चुके हैं। ठीक है,
तो दिस इज लोकल वेरिएबल। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल void method int x, ठीक। ऐसा जहां पर भी होगा तो स्कोप, व्हाट इज स्कोप? लाइफ टाइम ऑफ दैट वेरिएबल। तो x इज नोन टू दिस एरिया ओनली, ठीक। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लोकल। इट इज लोकल टू एनी मेथड और फंक्शन, ठीक। तो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द इंस्टेंस वेरिएबल। व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल? सो इसको मैं पूरा रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। अगर इंटरनेट कनेक्शन वो जा रहा हो तो यूट्यूब में आप देख सकते हैं, फिर आप प्रोग्रामिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वेरिएबल इज इंस्टेंस वेरिएबल। और कल किसी ने सजेशन दिया था कि आई हैव टू मेक गूगल क्लास ऑल्सो, तो मैं वहाँ पे गूगल क्लास भी आज बना दूंगा और मैं कंटेंट और उसी पे शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल इज any variable declared inside a class but outside the method, क्योंकि मेथड के अंदर तो लोकल वेरिएबल हो गया। वॉट एवर वी यूज एनी वेरिएबल इनसाइड एनी मेथड या declare any variable which inside a method is local variable. So apart from that, all the variables in the class are called instance variable. So what is instance? This is your class. We create object of our class and objects are called instance or example, ठीक। तो somewhat similar, all these things, all these three are somewhat similar, class, object and instance। तो किसी क्लास को जो बिलोंग करता है वेरिएबल, वही इसका इंस्टांस, मतलब जो इसका स्टेट बताता है, जो स्टेट बताता है किसी क्लास का, दैट इज योर इंस्टांस वेरिएबल। एग्जांपल से देखते हैं इसको। ये भी सिंपल था, ये कल हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार पूरा देखते हैं। क्लास ए int x, y, void m, int z एंड क्लास इज ओवर, ठीक। यहां से यहां तक हमारी क्लास थी, ठीक है, फाइन। जहां पर दो वेरिएबल्स थे x और y, ये देख रहे होंगे आप, जो कि क्लास के तो अंदर है पर आउटसाइड मेथड है, ठीक। तो दीज आर कॉल्ड इंस्टांस वेरिएबल्स। दीज आर कॉल्ड x एंड y इज योर मेंबर्स belonging to that class, whereas z is your what? Inside method. So z is your local. So this is local and this is instance, ठीक। I hope it is clear to you all. Now third variable, which is static variable. Let me clear this one. Static. So what is a static variable? Static variable, it cannot be local, cannot be a local variable, जिसकी बात हमने कल भी कही थी कि static cannot be a local variable. Also it is also declared outside the method body, outside the method, but inside a class, just as instance variable, but with one keyword used is static. So if we want to make any variable static, we use static keyword. For example, static int x. So it is here x is an integer variable, but it is a static variable. So whenever we have to create a static, and some points also, area is fixed and given only once. Yeah, area is fixed and given only
वंस इन द लाइफ टाइम, मतलब डिक्लेरेशन जब होगा, कंपाइलेशन जब होता है उसका, तो जब उस किसी स्टैटिक वेरिएबल को कुछ दिया जाता है तो उसका मेमोरी एलोकेशन फिक्स होता है और वो हमेशा क्या होता है, एक ही बार होता है। नाउ व्हेन टू यूज स्टैटिक वेरिएबल, ठीक, स्टैटिक वेरिएबल का अब थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि व्हेन वी यूज आर स्टैटिक वेरिएबल, इसका एक रियल टाइम एग्जांपल, इसका मतलब क्या हुआ, और हाँ, it can be accessed, last point, can be accessed by class name, it belongs to class, मतलब it belongs to main thing, ठीक, तो we can't use it through object, ठीक, फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं इस चीज को, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक, सी क्लास ए इंट एक्स है, स्टैटिक इंट वाई, बस अभी क्लास में बंद कर दे रहा हूं, ठीक है, बस इसको वेरिएबल समझने के लिए। फिर एक क्लास टेस्ट बनाया हमने, क्लास टेस्ट, और बना दिया हमने, नाउ वी आर क्रिएटिंग टू ऑब्जेक्ट्स, ए ओ वन या ओबीजे वन ही कर दो, चलो, ओबीजे वन इज इक्वल टू न्यू ए एंड ए ओबीजे टू इज इक्वल टू न्यू ए, ठीक, क्लास टेस्ट भी आपकी खत्म हो गई। ऑब्वियसली यहाँ पर मेन मेथड होगा, इसके ऊपर पब्लिक स्टैटिक void main string args, ये मेन मेथड खत्म हुआ और क्लास टेस्ट खत्म हुई, ठीक, ध्यान से देखिएगा, क्लास टेस्ट हमने बनाया, मेन मेथड, दो ऑब्जेक्ट बनाए सिर्फ, ठीक, इसको हम फर्दर अब देखेंगे क्या क्या हुआ उससे, ठीक है। वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स और वाई, इंट वाई, एक एक्स था इंस्टांस वेरिएबल और एक वाई था आपका स्टैटिक वेरिएबल। व्हाट हैपेंस इज कि अब मैं हटा दूं इसको, या इसको नीचे, इसके नीचे ही मैं थोड़ा सा, हाँ अब सही। तो हुआ क्या, डायग्राम से समझिए, एक obj1 बना, एक obj2 रेफरेंस वेरिएबल बना, obj1 किसी एक पॉइंट पर रेफर कर रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट को, obj2 ऑब्जेक्ट 2 को रेफर कर रहा है, ठीक है। मिला क्या, इसको भी x मिल गया, इसको भी x मिल गया, लेकिन y कहाँ गया, y किसी फिक्स्ड लोकेशन पे गया, क्योंकि y इज योर स्टैटिक वेरिएबल, ठीक, एंड both obj1 and obj2 can access, या both, yeah, can access that, anybody can access that variable y because it is static, and obj1 and obj2 are, मतलब you cannot use y through obj1, fine, but it is shared among all the objects, इसका मतलब ये है it is shared among all the objects your static variable, क्यों, कि उसका एरिया फिक्स हो चुका है। यहाँ पर x तो इसके पास भी है, x इसके पास भी है, लेकिन y क्योंकि स्टैटिक था तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उसमें शेयर होगा, उसकी शेयरिंग होगी, क्योंकि उसका एरिया फिक्स है। अब इसका मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूँ कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कैसे इस चीज को समझेंगे, हाउ, मतलब कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एन स्टैटिक वेरिएबल। सपोज यू हैव एन अकाउंट बैलेंस एंड जॉइंट, इट इज अ जॉइंट अकाउंट, ठीक, सो योर अकाउंट बैलेंस इज इंटीजर नंबर, 10,000 है, 1,00,000 रुपए है, 50,000 रुपए है, ठीक, एंड वट एवर द चेंजेस आर देयर, ज्वाइंट अकाउंट मान लीजिए आपके आपके फादर या फिर आपके आपकी मदर के साथ है, तो उनके पास भी एक एटीएम है, आपके पास भी एटीएम है, उन्होंने कहीं से निकाल लिए 10,000 रुपए, तो वहाँ 10,000 कम हो जाने चाहिए, ठीक, ऐसा नहीं है कि वो निकाले तो भी आपके पास 10,000 है, 10,000 है और 5,000 उन्होंने निकाल दिया तब भी 10,000 बचा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या बेसिक ज्वाइंट अकाउंट नहीं भी है, अकाउंट बैलेंस ही है, तो कहीं से भी कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा वो चेंजेस परसिस्ट होने चाहिए, मतलब रुके रहने चाहिए, चेंजेस मस्ट परसिस्ट फॉर दैट वेरिएबल। तो ऐसी जगहों पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर भी हमें वी नीड टू परसिस्ट आवर चेंज। तो ऑब्जेक्ट 1 ने कुछ चेंज कर दिया, ठीक है, उसमें, तो ऑब्जेक्ट 2, अब जब ऑब्जेक्ट 2 मिला तो उसको नया नया y नहीं मिलना चाहिए, उसको चेंज चाहिए, ठीक, तो whenever we need change, we whenever we have to persist our change in any variable, we should make that variable a static variable, ठीक है। तो ये चीज था डायग्राम से, फिर देखिए कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट, नाउ हाउ टू एक्सेस करने की बात की, एक्सेस कैसे करेंगे, तो दिस इज हाउ वी एक्सेस।
नाउ दैट की फिर से एक बार ऊपर से देखिए, ये x और स्टैटिक था y, फाइन। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? वी कैन एक्सेस obj1 डॉट x इज इक्वल टू 10, दिस इज हाउ 10 डाल दिया बस उसमें, ठीक, एंड obj2 डॉट x इज इक्वल टू 20, मतलब x1 वाला जो ऑब्जेक्ट था हमारा उसमें x में वैल्यू 10 है, 2 वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसमें वैल्यू 20 हमने डाल दिया, ठीक। इस तरह से एक्सेस करते हैं obj, बट हाउ टू एक्सेस एन स्टैटिक वेरिएबल? वी कैन राइट डायरेक्टली y, or we can write with the class name a dot y is equal to 10, like this. So whenever you have to use it, you use a dot y. Now if you want to print anything inside your method या static variable, तो आप इसी तरह से हमेशा इस्तेमाल करेंगे इसको, a dot y और simply y, ठीक। So this is how we can use and access. So these are three types of variables, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या देख लिया, रिवाइज किया। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक। ना अच्छा, रन कराने की बात बता देता हूँ मैं, रन कैसे कराते हैं, और इन्वायरमेंट पाथ की बात बता देता हूँ। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट पाथ, ठीक। You have to set your environment, fine, to execute your Java program. I will suggest you to start programming on Notepad, not to use any other method, so that you can learn a lot, ठीक है। अगर बाकी टूल्स पे आप काम कर रहे हो शायद आप उतना नहीं समझ पाएंगे, जो नए हैं Java प्रोग्रामिंग में, I will suggest to start on Notepad। तो कैसे करेंगे? ये फाइल आप सेव करेंगे क्लास नेम से, जैसे टेस्ट इज योर क्लास नेम, तो टेस्ट डॉट जावा से सेव करेंगे इसको, ठीक। नाउ यू हैव टू सेट योर एनवायरनमेंट पाथ, ठीक। एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वेयर योर डायरेक्टरी इज रिसाइडिंग एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वैल्यू। तो नेम वैल्यू पेयर, एनवायरनमेंट वेरिएबल इज नेम एंड वैल्यू पेयर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, माई कंप्यूटर में जाकर के, ये नेट पे भी देख लीजिएगा कैसे सेट करते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार जल्दी से। माई कंप्यूटर में जाके राइट क्लिक करेंगे, उसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल आएगा, उसमें राइट क्लिक करेंगे, उसमें ओपन करेंगे, तो ये दो चीजें रहेंगी। नेम में आप पाथ दे दीजिएगा, और जहां पर आपका है जैसे सी में प्रोग्राम फाइल, और फिर जावा, फिर जेडीके वर्जन जो भी होगा 1.8 समथिंग, और फिर बिग, ठीक। ये एज इट इज उस पर जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। देन फॉर एग्जीक्यूशन, जहां भी आपकी फाइल है, मान लो डेस्कटॉप पर है तो सी डेस्कटॉप ऐसे आ जाएगा आपका। फिर आप कंपाइल करोगे पहले, तो टेस्ट डॉट जावा, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, और अगर इसमें कोई एरर नहीं आती तो फिर से ऐसे ही आ जाएगा ये। फिर आप इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करोगे, जावा टेस्ट ओनली, फिर आपका जो भी आउटपुट होगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। तो दिस इज हाउ वी एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम, ठीक। बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी अभी, जो लोग नए होंगे कई एरर्स आती है। तो आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं वन बाय वन ऑन चैट, और आई हैव रिकॉर्डेड दिस ऑल्सो एंड आई विल अपलोड दिस, रात तक कर दूंगा मैं। If it's, I have 7 minutes left, so if anybody wants to ask any question, can ask.